आज के क्लास में ज्वाइन हुए हैं उन सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। ओके, कैसा गया आप सभी लोगों का न्यू ईयर? चलो, तो अभी मेरा सबसे आप लोगों से एक सवाल है कि ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर है या इस्लामिक न्यू ईयर है या क्रिश्चियन न्यू ईयर है? साधु साधु साधु, अरे आप लोग तो बड़े होशियार हैं। तो ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। सो बच्चों, आप सभी लोग मुझे अपना एक एक करके नाम बताएंगे। ओके, पहले वैशाली बोरकर जी के इधर के जो सारे बच्चे वो बताएंगे, फिर बाकी लोग जो मोबाइल से जुड़े वो लोग मुझे एक एक करके नाम बताएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद देयर एज। ओके, उनकी एज के साथ बताएंगे। My name is Pankudi Shivaji Shambarkar. ओह, पंखुड़ी जी। ओके ओके, एज? Age 10. ओह, ग्रेट 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 ग्रेट, साधु साधु साधु। आप? My name is Sachi Vilas Bahadur. My age is 9. ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, साधु साधु साधु। नेक्स्ट। My name is Samir Shivraj Masurkar. My age 30. 13? कबीर, योर नेम इज कबीर ना? ओके। Vandami Vanteji. My name is Tanvi Sanjay Shambarkar. My age 13. ओह, साधु साधु साधु। नेक्स्ट। My name is Aryan Dinesh Mohor. My age is 30. Oh, great, 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 great. All most of our 13-year-olds. Okay, next. Nirvan Dinesh Mohar. My name is Nirvan Dinesh Mohar. Oh, how cute you are. How old are you? 5 साल. Oh my God, 5-year-old. So cute, so cute, so cute. साधु साधु साधु। मुझे ये बात काफी अच्छी लग रही है कि आप जब मुझसे बात करें तो हाथ जोड़ के बात करें। इट्स अ गुड कल्चर। याद रखिएगा, जब भी भंते से बात करते हैं हाथ जोड़ के ही बात करते हैं। और आप सभी लोगों को ये बात पता है, इसका मतलब यू ऑल आर हैविंग गुड मैनर्स। सो गुड, सो गुड, यू आर रियल बुद्धिस्ट किड्स। साधु साधु। क्योंकि इधर थाईलैंड में भी कोई भी बात करेगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो भंते से हाथ जोड़ के ही बात करता है। is a Buddhist culture. Great, you all kids are great. Okay, next. My name is Vibhor Vilas Bahadur. I am 14 years old. Your voice is so bahadurpur. Okay, next. Vandami Vandeji. My name is Mamal Temunne. My age 8 years. Good, good, good. Vandami Vandeji. My name is Khushi Sanjay Shambarkar. My age 10 years. Oh, good, good. Khushi, you are so khushful, happyful, joyful. Great, great. Vandami Vandeji. My name is Ananya Mishra. My age is 15 years old. Oh, wow, great. 15. Next. Mangalu. My name is Pratish Mishra. I'm 10 years old. 10 years old. Sadhu, sadhu, sadhu. Vandami Vandeji. My name is Sunil Karate. I already is 10. Oh, great. Vandami Vandeji. Mangalu. name Shivraj Masurkar. Shivraj. My age is 13 years old. Oh, great, 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 great. Vandami Vandeji. My name is Prachi Sunil Karate. I am 11 years old. Oh, great, great, great.
वंदना बंते जी, my name is Oh, great, I am beta. Your smile is so good. Great, great. Good confidence. 15 years old. Great. हो गए, सभी के नाम हो गए? ओके, ठीक है। अभी हम बाकी बच्चे लोग जुड़े हैं, उनके नाम पूछते हैं। ओके, बाकी बच्चे लोग बताओ अपने करके नाम। मामी भंडार जी। जी बेटा। My name is W Rahman. What is your name? W Rahman. Oh, Rahman ji. Good name, good name, good name. How old are you? 8. You are 8 years. Oh, this. Who's? Let me see your face. You are? Speak again. No, unmute mic. About yourself. Please unmute the mic and Yes. Oh, you are Rahman? Yes. Yes. Yes, you are so cute, dear. Good. Okay, next. My name is Vedit Chandra and I am 11 years old. Oh, okay. My Welcome, beta. name is Titik Shinnak Gaikwad. I am 5 years old. Oh, how cute, child. There is one more who is 5-year-old. Good. Next. Next, okay. Finish. Only this much kids are here, okay. Vandami Bhanteji. I am Mangal. Apurva Phule. I am 15-year-old. Oh, Purva Phaleji. Good. Vandami Bhanteji. Mangal ho. My name is Prasanna Bharadhare. I am 7 years old. I Yes. study in class 2nd. Oh, good. Next. Namami Bhanteji. My name is Shubhangi Singh and I am 11 years old. Oh, Shubhangi, great. Nice to meet you. My name is Arvashman and I am 10 years old. Who is Arbash? Arbash surname? Arav. Aryavansh. Arav. Arav. Great, Arav. Next. Finish. वंदना बंते जी, Mangal ho, beta. my name is Vibhor Saule and I am in class 8th and I am 13 years old. You are 13-year-old. Oh, great. Okay, finish. So now my turn. Okay, should I tell my name? Do you want to know my name? Do you all want to know my name? yes. Yes. Okay, so okay. And now I will tell my name. Okay. So my name is. Can you guess anyone? What is my name? What is my name? Oh, okay. In short, you can say me Sivli, Bhante Sivli. Okay. Those who want to say me in short, or those who want to me call by call, who in short you can call me Bhante Sivali, or my full name is Bhante Siri Sivali Abhasaro. Okay. Say, everyone say. Once again, सबकी एक साथ आवाज आनी चाहिए, एक साथ. चलिए बोलिए.
Okay, thank you so much. So I am 8-year-olds. No, I am not joking. Bante can't lie, na? I am really 8-year-olds. Really, yes. Because I was ordained when I was 16-year-olds. So that time my new birth take place. So जब मेरी दीक्षा हुई थी तब मैं 16 साल का था. मैंने 16 साल की उम्र में चीवर लिया. तो जब चीवर लिया तो फिर से मेरा एक नया बर्थ हुआ, मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई. सो जब आप बुद्धिज्म में दीक्षा लेते हैं तो आपकी न्यू लाइफस्टाइल शुरू हो जाती है, तो आपका एक न्यू बर्थ होता है. तो तब से लेकर मुझे 8 साल हो गए हैं. तो एज अ बुद्धिस्ट लाइफ, एज अ मंक लाइफ, एज अ मंक करके, एज अ भिक्खू करके मैं कितने साल का हूँ? 8 साल का. बट नॉर्मली आई एम 23-year-olds. हाउ मच? 23 years old. So I am young Bhante, okay? Like you all, but not so young as you all are. Okay, so now we'll start our class and I will ask question, okay? Yes. And those who will give good answer, okay, we will make the template of that kid, okay? उनका हम टेम्पलेट बनाएंगे और हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे हम, ओके ओके. और इसके अलावा मेरे तरफ से उनको ट्रॉफी भी रही मिलेंगी जो अच्छे से जवाब देगा. अब ये मत सोचिए कि मैं थाईलैंड में हूँ, ट्रॉफी कैसे भेजूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए. बराबर जहाँ पे भी आपको टॉफी, अच्छी चॉकलेट, बहुत अच्छी चॉकलेट मिल जाएंगी, ओके. So those who will answer good, they will get a good toffee. Okay, ready? Yes. On your mark, get set, ready. So let's start. तो इसमें से किन लोगों को पता है कि पंचशील क्या होता है? वो लोग मैसेज में ऐसा हैंड करेंगे, ओके, जिनको पता है कि पंचशील क्या होता है. ओह माय गॉड, यहाँ पे सभी बच्चों को पता है. वैशाली जी के सभी बच्चों को पता है. बाकी किस किस को पता है पंचशील क्या होता है? इट्स ओके इफ यू डोंट नो. मुझे खुद को 16 साल की उम्र तक नहीं पता था कि पंचशील मतलब क्या होता है. ओके, खड़से जी को आता है, दिलीप विनोद जी के बच्चे जी को आता है, वंदना कुमार जी को आता है. ओके ओके, गुड 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 गुड. वैसे मुझे खुद को 16 साल की उम्र तक पता नहीं था कि पंचशील क्या होता है. अन्वेश फुले जी को भी पता है. वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, तो हम पंचशील भी जानेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द जनरल बुद्धिज्म, ओके. पर सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? शील लेंगे, ठीक है. तो आप सभी लोग साल्वे जी के पीछे पीछे याचना करेंगे, जैसे साल्वे जी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इस बुद्धिस्ट कल्चर कि जब भी हम कोई बुद्धिस्ट प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम पहले 30 शरण और पंचशील जाते हैं, ठीक है. क्यों 30 शरण पंचशील लेते हैं? क्योंकि जिसके प्रति जिसकी शिक्षा हम सीख रहे हैं, पहले उसको तो अच्छे से, मतलब उसको पहले वंदन करना चाहिए. क्योंकि बुद्धिस्ट, ये इंडियन कल्चर है कि हम जिसके पास से सीखते हैं, जिस गुरु के पास से सीखते हैं, जिस शिक्षा को सीखते हैं, उसको पहले कभी भी हम क्या करते हैं? वंदन करते हैं, मतलब नमन करते हैं, उसको होमेज पे करते हैं, ठीक है. और बुद्धिज्म के हिसाब से ना सिर्फ होमेज पे करना चाहिए, बल्कि हमने शील भी ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि शील को बेस मानते हैं, शील को एक अच्छा दायरा मानते हैं. सो दैट्स वाई पहले हम लोग 30 शरण और पंचशील लेंगे. और उसके लिए क्या करते हैं? हम मंग से याचना करते हैं कि बनते हमको क्षमा कीजिए और हमारे से अभी तक जो भी गलती हुई क्षमा कीजिए और हमें अभी शील दीजिए. तो सभी बच्चे साल्वे जी के पीछे पीछे बोलेंगे. ओके, साल्वे जी स्टार्ट. सभी श्रद्धावान मित्र, आप मित्र हाथ और जोड़िए. नवयुवक और हमारे बौद्ध धर्म का भविष्य और आने वाले समय के यंग बनते, उससे क्या पता कोई अच्छा बनते बन जाए. हाँ, ठीक है. सभी प्लीज 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 कैमरा ऑन कीजिए. सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका, प्लीज, अगर आप कैमरे ऑन करोगे तो सभी को प्रेरणा मिलेगी. और मुझे सभी के प्यारे प्यारे चेहरे देखने के लिए मिलेंगे.
क्योंकि मैं आप लोगों से इतना हैंडसम नहीं हूं ना, और इतना यंग भी नहीं हूँ। ठीक है, सभी हाथ जोड़े। हाथ जोड़। हाँ, मेरे पीछे बोलिए, ओकास वंदामि भन्ते द्वारत एन मया कतं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत एन मया कतं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत एन मया कतं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते। नाउ वेट, नाउ इन हिंदी, रुकिए, बोलो। भन्ते, हमें अपना कीमती समय दीजिए, हमारे द्वारा वाणी से, काया से और मन से जो भी गलतियां होंगी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। खमतु खमतु खमामी, मैं आप सभी को क्षमा करता हूँ। बोलिए साधु साधु। अभी पंचशील की याचना करेंगे। कीजिए सालवी जी। अभी हम पंचशील की याचना करेंगे। ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अभी हिंदी में। भन्ते, हमें अपना समय दीजिए, हम त्रिशरण और पंचशील की और साथ में धम्म देशना की याचना करते हैं। साधु साधु साधु। बोलिए, मैं बोलूंगा। यंग अहं वदामि तं वदेत। बोलिए आम भन्ते। आम भन्ते मतलब हाँ भन्ते।
अभी आपने आम बनते क्यों बोला? मैंने पाली में बोला कि आप लोग जो भी बोलेंगे सब लोग एक सुर में एक साथ बोलना, तो इसलिए आपने आम बनते का। आम बनते मतलब हाँ बनते। ओके, तो चलिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। तीन बार। ओके, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं निठितं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तिसरनेन संधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादे तब्बो। साधु साधु साधु। साधु। तो अभी आप सभी लोगों ने तीसरण पंचशील लिया। अभी हम ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ऑल आर रेडी?
सो आज हम ठीक है पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बुद्धिज्म पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, ओहो जोश सभी में अच्छा है। ओके, बुद्धिज्म में क्या पढ़ने वाले? अ जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब ऐसा नॉर्मली जो हम रोजमर्रा जो होता है बुद्धिज्म, उसमें एकदम जनरल, एकदम कॉमन। ओके, किसके द्वारा पढ़ने वाले हैं? भंते श्री शिवली आभासरो जी के द्वारा, आने मेरे तरफ से। ओके, सो नेक्स्ट। सो हम लोग इसमें क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे? इसमें हम लोग 5 जो WH टाइप वर्ड्स है, बताएंगे मुझे WH टाइप वर्ड्स कौन से होते हैं? बताइए मुझे कौन से होते हैं WH टाइप वर्ड्स? गुड गुड गुड, साधु साधु। तो ये जो व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? WH टाइप वर्ड। तो हम बुद्धिज्म के भी यही बातें जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट। क्या जानेंगे? व्हाट के बारे में, कि व्हाट इज बुद्धिज्म। ओके, फिर हम क्या जानेंगे? हाउ, हाउ इज बुद्धिज्म। ओके, फिर हम क्या जानेंगे? व्हाई। फिर हम क्या जानेंगे? whom। और फिर क्या जानेंगे? वेयर। और फिर क्या जानेंगे? व्हेन। इन 5 WH टाइप जो है बेसिक बुद्धिज्म, ये बात जानेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज बुद्धिज्म। सेकेंड, हाउ बुद्धा टॉट बुद्धिज्म। थर्ड, व्हाई बुद्धा टॉट बुद्धिज्म, यानी बुद्ध ने बुद्धिज्म क्यों पढ़ाया। ठीक है, whom did बुद्धा टॉट बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म सबसे पहले बुद्ध ने किसको सिखाया। उसके बाद वेयर डिड बुद्धा टॉट बुद्धिज्म, कि बुद्ध ने बुद्धिज्म कहाँ पढ़ाया। और एट द लास्ट, व्हेन डिड, मतलब बुद्ध ने कब बुद्धिज्म पढ़ाया। तो क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, किसको पढ़ाया, किधर पढ़ाया और कब पढ़ाया। तो सभी लोग साथ बोलेंगे, क्या पढ़ाया, बोलिए। कैसे पढ़ाया, ठीक है। ओके, क्यों पढ़ाया, किसको पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया और कब पढ़ाया। ये हम जानेंगे बुद्धिज्म के बारे में। ओके, तो रेडी। तो सबसे पहले व्हाट, मतलब क्या पढ़ाया। ओके, मतलब व्हाट डिड बुद्धा टॉट, तो ये पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज बुद्धिज्म मीन्स। सबसे पहले बुद्धिज्म का अर्थ क्या होता है, हम ये जानेंगे। तो कोई मुझे बताएगा बुद्धिज्म का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? आंसर टाइम। कोई भी, कुछ भी चलेगा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो। मुझे तो अब तक पता नहीं कि क्या है बुद्धिज्म का मीनिंग। जो मार्ग पर चलते हैं, हाँ, जो बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, जो बुद्ध के मार्ग पर चलता है। क्या नाम है, किसने जवाब दिया ये? शुभांगी। शुभांगी जी। ओके, तो शुभांगी जी ने जवाब दिया है, शुभांगी जी, ठीक है। ओके, और कौन कौन है, और कोई जवाब देगा? पंचशील का पालन करना। ओह माय गॉड, पंचशील का पालन करना। ओके, किसने जवाब दिया है, क्या नाम है? साची। ओह माय गॉड, आजकल गर्ल्स हर जगह आगे है। गर्ल्स से बॉयज व्हाट आर यू डूइंग, मैं भी बॉय हूँ, कोई तो जवाब दो प्लीज। बॉयज कम ऑन, यू कैन। और कोई? 22 प्रतिज्ञा का पालन करना। ओके, हु किसने जवाब दिया ये? समीर।
समीर, ओहो समीर, माय गॉड यू आर टू ब्रिलियंट। पर एक ही लड़का, और कोई? वो राग द्वेष मोह का मोह से मुक्त। बाप रे, ओ माय गॉड, हु इज दिस? कौन है, नाम किसका है ये? क्या नाम है इनका? वैदेही। वैद, ओ माय गॉड, अगेन गर्ल, ओहो गर्ल्स आर आगे। का पालन कर रहे। ओ माय गॉड, हु इज दिस? कौन है ये? पंखुड़ी। ओ पंखुड़ी, वंस अगेन गर्ल, लगता है गर्ल्स का आगे है पंखुड़ी। ओके नेक्स्ट। गए रास्ते पे चलना। ओहो, क्या नाम है, क्या नाम है इनका? विभोर। क्या क्या? विभोर। विभोर, बाप रे, आप तो एकदम सुबह की तरह एकदम जवाब दे दिया आपने। विभोर मतलब सुबह ही होता है। ओके, और कोई? अष्टांगीचा मार्ग पाडणे। ओके, ये कौन है? समीर। ओहो समीर, हो ठीक है समीर। ओके, सो हमें इतने जवाब आए। किसी ने जवाब दिया आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, किसी ने जवाब दिया पंचशील का पालन करना, किसी ने जवाब दिया 10 पारमिता, किसी ने जवाब दिया 22 परिज्ञा। तो सभी के जवाब से कहीं ना कहीं ये पता लगा है कि पालन करना बुद्धिज्म में कुछ तो है जिसमें पालन किया जाता है। सिर्फ बैठ के या हाथ जोड़ के काम चलता है क्या? नहीं। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म में फॉलो करना पड़ता है, बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बैठे बैठे काम होगा क्या? बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू कर रहे अंताक्षरी, ऐसा नहीं होता है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में वी हैव टू डू वर्क, वी हैव टू फॉलो द पाथ। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। So now next. So the next question is, अभी जो हम बुद्धिज्म बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं ना बुद्धिज्म। तो did Buddha himself use this word? क्या बुद्ध ने खुद होकर ये शब्द इस्तेमाल किया? नो सर, नो सर। नो। ओके, सर। कितने लोग बोलते नहीं, शाबाश, क्योंकि बुद्धिज्म ये मॉडर्न वर्ड है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है बुद्धिज्म के लिए वर्ड? फिर बुद्ध ने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? अब मैं आप सभी को ऑप्शन दूंगा, आपको जवाब देना है। पहले हम जानते हैं कौन कौन वर्ड्स हमारे ऑप्शन में है। तो सवाल के जवाब रहे आपके स्क्रीन पे। ओके, सबसे पहला बौद्ध धर्म, या इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट रिलीजन। आप सभी लोगों ने शब्द सुना है क्या? तो ये एक है बौद्ध धर्म, मतलब बुद्धिज्म के लिए सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची शब्द ये भी है बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा शब्द है? आर्य विनय। और कौन सा शब्द है? क्या किसी ने ये शब्द सुना है क्या? नो। ओके, इसका मतलब होता है नोबल डिसिप्लिन। नोबल मतलब हायर, अच्छा, बहुत अच्छा। डिसिप्लिन मतलब रूल्स। ओके, हायर डिसिप्लिन, नोबल डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट बुद्ध धम्म, ये शब्द सुना है किसी ने? यस। ओके, सो आप मुझे बताएंगे ये बौद्ध धर्म और ये बुद्ध धर्म में, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? कोई बताएंगे मुझे? ये जो बौद्ध धर्म है ये हिंदी में है, ये क्या है? और ये जो बुद्ध धर्म है ये पाली में है, ये क्या है? पाली पता है ना, पाली वो लैंग्वेज है जिसमें बुद्ध ने बोला है, जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया है। बुद्ध की लैंग्वेज पाली लैंग्वेज। ओके, बुद्ध की लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज थी? पर बुद्ध ने यही कहा क्या किसी पाली लैंग्वेज में उपदेश देना? नहीं, बुद्ध ने कहा आप लोगों जिस लैंग्वेज में समझता है उस लैंग्वेज में लोगों को धर्म समझाओ और समझो। इस तरह बुद्ध क्या थे, इतने ओपन माइंडेड थे। बुद्ध ने ऐसा किसी एक ही लैंग्वेज पे नहीं दिया, क्योंकि उस समय बुद्ध के समय में पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, इसलिए बुद्ध ने पाली में दिया। ठीक है, ओके। और इसको क्या कहते हैं? बुद्धास्पात या बुद्धास टीचिंग। नेक्स्ट धम्म विनय, क्या है? ठीक है, जिसे प्रॉपर वर्ड है डिसिप्लिन फेनोमेना। क्या है? धम्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेनोमेना। क्या बोलते हैं? और विनय को क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन। फेनोमेना, ये काफी हार्ड वर्ड लग रहा होगा पर हार्ड नहीं है। फेनोमेना का मतलब होता है ये जो घटनाएं घटती है ना उसको क्या कहते हैं हम, फेनोमेना। जो हमारे सामने जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही है, वो सब काय में आ जाता है, फेनोमेना। फिर वो नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो या कैसा भी हो, जो भी घटनाएं, जो भी हमारे इर्द गिर्द बातें घट रही है या हम कर रहे हैं, वो सभी क्या है, फेनोमेना। जैसे फूल का उगना, ये फेनोमेना है। सूरज का आना, किरणें मिलना सूरज की, ये फेनोमेना है। हमारा किससे बात करना, ये फेनोमेना, ये सभी फेनोमेना कहा जाता है। ओके, फ्रेंड देना। सो एक तरफ राइट हैंड में आपका राइट होगा कि मेरा राइट होगा, बताइए। तो ये इधर जिधर इस तरफ जिधर बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म लिखा है, ये हम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द है, ठीक है। और एक तरफ आर्य विनय और धम्म विनय, ये बुद्धा द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द है। ये जो बौद्ध धर्म, ये जो बुद्ध धर्म है ना, ये हमको सांप्रदायिक बनाता है ये शब्द इस्तेमाल करने से, और लगता है कि बुद्ध की शिक्षा है। पर ऐसा नहीं है। बुद्ध जैसा इंसान, इतना महान इंसान, कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये शिक्षा मेरी है या सिर्फ बौद्ध लोगों की है। ऐसे शब्द क्या होता है कि लगता है कि किसी एक ही इन्हीं लोगों की है या किसी बुद्धिस्ट लोगों की है, पर ऐसा नहीं है। बुद्ध ने क्या शब्द इस्तेमाल किया, आर्य विनय। आर्य विनय मतलब श्रेष्ठ लोग, जो एकदम अच्छे लोग, जो इन बातों का पालन करते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं आर्य विनय। क्या कहते हैं, आर्य विनय। आर्य विनय। तो बुद्धा के लिए, सब बुद्धिस्ट बुद्धा की टीचिंग के लिए सबसे अच्छा वर्ड है एक तो आर्य विनय, नहीं तो धम्म विनय। बोलिए, धम्म विनय। आर्य, आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, सबसे अच्छे लोग क्या माने जाते हैं, आर्य कहे जाते हैं बुद्धिज्म में। किसको कहते हैं बुद्धिज्म में आर्य, सबसे अच्छे लोगों को। जो सबसे अच्छे लोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्य। क्या कहते हैं, आर्य, सबसे अच्छे लोगों को। तो वो आर्य लोग जिन रूल्स को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं आर्य विनय। ओके, क्योंकि रूल्स हमको क्या बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। रूल्स हमें बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रूल्स फॉलो करने से हमें अच्छी फ्रीडम मिलती है। रूल फॉलो करने से हमें लोग अच्छा मानते हैं, और रूल्स फॉलो करने से हमसे गलतियां बहुत ही कम होती है। ओके, तो जिससे बहुत गलतियां होती होंगी वो समझ जाइए कि रूल्स फॉलो नहीं करता होगा। ओके, जिसको बहुत डांट पड़ती होंगी ना, समझ जाइएगा कि वो रूल्स फॉलो नहीं करता होगा। तो जो चाहता है कि उसे डांट कम पड़े मम्मी से या पापा से या टीचर से, उसने क्या करना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए। ओके, तो आर्य विनय मतलब सबसे अच्छे रूल्स, जो अच्छे लोगों द्वारा पालन किए गए रूल्स। ओके, और दूसरा धम्म विनय। धम्म विनय मतलब बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ शिक्षा। ओके, 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 यस। सो कौन से शब्द इस्तेमाल करनी चाहिए हमने, आर्य विनय नहीं तो धम्म विनय। ये शब्द है जो बुद्ध द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, एकदम सटीक शब्द है बुद्ध के शिक्षा के लिए। और बौद्ध धर्म और बुद्ध धर्म ये हम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ये मॉडर्न शब्द है। तो अभी हमें झगड़ा नहीं करना कि हमने ये शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, जिसको जैसा लगे वो शब्द इस्तेमाल कर सकता है। पर हाँ, किसी को इच्छा होगी ये जानने की बुद्ध ने क्या इस्तेमाल किया या सटीक शब्द कौन से है, तो ये आर्य विनय नहीं तो धम्म विनय, ये शब्द है। ओके, so now next question is, what is the next question? The next question is, what does Buddha teach? कि बुद्ध ने हमें क्या पढ़ाया। धम्म, साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा। अभी से हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो बुद्ध ने खुद ने कहा है कि मैं सिर्फ दो बातें पढ़ाता हूँ। बुद्धा टीच ओनली टू थिंग्स। क्या पढ़ाते हैं बुद्धा, कितनी बातें पढ़ाते हैं बुद्धा, ओनली टू थिंग्स। बुद्धा टॉट ओनली टू थिंग्स। तो कौन से देखिए कितना अच्छा है कि बुद्ध सिर्फ दो बातें पढ़ाते हैं हमें। तो हमें सिर्फ वो दो बातें समझने की जरूरत है कि क्या है। तो सबसे पहली बात, ओके, कोई गेस करेगा क्या हो सकती है पहली बात। ओके, लेट्स स्टार्ट। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। क्या पढ़ाते हैं, दुख सत्य। क्या पढ़ाते हैं, दुख मतलब पता होगा ना,
कोई बताएगा दुख मतलब क्या होता है? दुख मतलब परेशानी। ओके, तो मेरे ख्याल से बच्चों को क्या परेशानी होती होंगी? मम्मी से डांट खाना, है ना? कितनी बड़ी परेशानी है ना? फिर कभी कभार टीचर से भी डांट खाना, अरे रे रे, वो और एक परेशानी। फिर तो कभी कभार पप्पा से भी डांट खाना, अरे रे रे, फिर और एक परेशानी। फिर तो कभी कभार बाजू वाले से भी डांट खाना, अरे रे रे, फिर परेशानी, है ना? तो ये परेशानियों भरा संसार, ओ माय गॉड, कितनी दुख, कितनी तकलीफें, कितना संकट। तो बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं कि लाइफ में दुख है, लाइफ में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है। ओके, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना है। तो जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि लाइफ में परेशानियां हैं, संकट है, प्रॉब्लम है, वो रोएगा क्या लाइफ में? सिर्फ रोते बैठ जाएगा क्या? ओ माय गॉड कितनी सफरिंग है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो जानता है, बुद्ध ने तो ये पहले ही बताया कि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है ही। तो रोके क्या मिलने वाला है? रोके कुछ भी नहीं मिलेगा, शिकायत करके कुछ नहीं मिलेगा कि ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, मम्मी मैं नहीं करूंगा, मम्मी मुझे नहीं करना, पापा मुझे नहीं करना, या नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। ऐसी जो बातें करता है, इसका मतलब इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं करता, दुख है। यानी बुद्ध की इस बात को नहीं मान रहा कि दुख है, सफरिंग्स है, प्रॉब्लम्स है। जो ही व्यक्ति ऐसा बोलता है कि नहीं यार, सफरिंग तो है, हमें करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए, ट्राई बट डोंट क्राई, बोलिए मेरे साथ, ट्राई बट डोंट क्राई, ट्राई बट डोंट क्राई। मतलब कोशिश करते रहो पर रोने का नहीं, है क्या नहीं? ओके, क्यों रोने का नहीं? क्योंकि हमें बुद्ध ने तो पहले से ही बता के रखा है कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? यस। तो जब आपको पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम मिलेंगे तो हमने डरने का ना है। ओके ओके, आपने वो गाना सुना होंगे ना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ओके ओके, तो बुद्ध ने हमें क्या बताया है कि लाइफ में दुख है। ओके, और ये दुख किसी ईश्वर के पास बैठ के या हाथ जोड़ के बैठ जाओगे और बोलेंगे ए भगवान मेरे दुख दूर कर, अगरबत्ती लगाऊंगा, मैं मोमबत्ती लगाऊंगा, समोसा दूंगा, इडली दूंगा, वड़ा पाव दूंगा, गुपचुप दूंगा, ऐसे होगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि कितना भी कुछ कर लो, लाइफ में सफरिंग है, हमें लड़ना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धिज्म में ये सिखाया जाता है कि दुख है। फिर नेक्स्ट बात कौन सी है? कि दुख का निरोध भी है, कि दुख दूर भी किया जा सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव वाली बात है ना? बुद्धा कितना पॉजिटिवली बोलते हैं कि यस, हम दुख को दूर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुखों को दूर भी कर सकते हैं। वो भी जो भी रो रहा हूँ कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, बहुत संकट है, बहुत डांट पड़ती है मम्मी से, बहुत डांट पड़ती है पापा से, बहुत डांट पड़ती है टीचर से, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा जो रो रहा हूँ दुख को लेके, प्रॉब्लम को लेके, उसने ये सोचना चाहिए, अरे नहीं, बुद्ध ने तो हमें बताया है कि दुख दूर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुख दूर भी कर सकते हैं। क्यों रोने का, क्यों ऐसे बैठ जाने का? हम इन डांट से उभर के भी आ सकते हैं। हम ऐसा भी काम कर सकते हैं कि बार बार डांट ना पीले, हमें बार बार डांट ना मिले। तो इसके लिए बुद्ध ने क्या दिया है? 8 फोल्ड पाथ। क्या दिया है? उसे हम कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 2 बातें समझ गई आपको? हमें बुद्ध क्या सिखाते हैं? एक तो दुख सत्य और दूसरा दुख निरोध सत्य। आने लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पर उस प्रॉब्लम से हम बाहर भी आ सकते हैं। ओके, इन 2 बातों को ही बुद्धिज्म सिखाया जाता है। ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अभी व्हेन डिड बुद्धा फर्स्ट टॉट, कि बुद्ध ने सबसे पहले कब पढ़ाया? अभी पहले जानते कि बुद्ध का जन्म कब हुआ होगा। तो बुद्ध का बर्थ हुआ था आज से 2500 साल पहले, 563 BC। कब हुआ था? ओके, ऐसे दिख रहा है बुद्ध की इमेज।
ओके, नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 534 BC। BC। ओके, कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा। कब हुआ था? जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनलाइटन। ज्ञान प्राप्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, गुड गुड गुड। और उन भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन कब दिया था? बस ज्ञान प्राप्ति के 2 महीने बाद। कब दिया था? प्राप्ति के 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। और बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया अपने शिष्यों को, 5 भिक्षुओं को, इसलिए उसे क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा। क्या कहते हैं? गुरु Because Buddha was the first जिसने पहले 5 भिक्षु, अपने पहले 5 शिष्यों को प्रवचन दिया और 5 के 5 शिष्य सीख गए। 5 के 5 शिष्य आर्य बन गए। 5 के 5 शिष्य अरहंत हो गए। तो कितने ग्रेट मास्टर के जिनको भी सिखाया वो 5 के 5 अरहंत हो गए। तो उस पहले उपदेश को क्या नाम से जानते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन। किस नाम से जानते हैं? तो भगवान बुद्ध का पहला उपदेश, पहला प्रवचन, पहली शिक्षा किस नाम से जानी जाती है? शाबाश, धम्मचक्र प्रवर्तन। नाउ बुद्ध की डेथ कब हुई? 583 BC। कब हुई? 483 BC। सॉरी 480। भगवान की डेथ क्या किस नाम जानी जाती है? परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण? किस नाम जानी जाती है? परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण। शाबाश। तो उनका पहला प्रवचन जाना जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन नाम से और उनकी डेथ जानी जाती है परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण नाम से। ओके, तो अभी मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ कि बुद्ध ने कब पढ़ाया? When did Buddha taught? Tell me. 563 BC या 534 BC या आफ्टर 2 मंथ या 483 BC? बताइए मुझे। आफ्टर 2 मंथ। आफ्टर 2 मंथ। किसके 2 मंथ? किसके 2 महीने बाद? ज्ञान प्राप्ति के 2 महीने बाद। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा जिस रात को ज्ञान प्राप्त हुई उसके 2 महीने बाद भगवान ने प्रवचन दिया। गुड गुड गुड। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक-एक करके याद रखिए, मैं आपको पूछूंगा सवाल तो भूलिएगा नहीं। सो नाउ ठीक है, अब भगवान ने तो 2 महीने बाद, वैशाख पूर्णिमा के 2 महीने बाद पढ़ाया सबसे पहले, लेकिन कहाँ पढ़ाया? अब ये सवाल होता है ना? तो भगवान ने पढ़ाया मुगदाय वन। कहाँ पढ़ाया? कहाँ पढ़ाया? सारनाथ। वाराणसी सारनाथ में मृगदाय वन में पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया? ओके ओके बच्चों, आई गेट इट। अभी क्या पढ़ते हैं? आपने देखा कि जो पुराने जो पेंटिंग्स थे ऐसे बुद्ध के, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन पुराने पेंटिंग्स में बुद्ध के पीछे हमेशा हिरन दिखा है। दिख रहा है आपको हिरन? डियर्स दिख रहे हैं क्या पेंटिंग में? दिख रहे हैं? आपको यहाँ पे पेंटिंग्स में जो पुराने फोटोज थे बुद्ध के, इसमें पीछे में दिख रहे हैं आपको हिरन? दिख रहे हैं छोटे छोटे हिरन? यस और नो? तो आपने कभी सोचा होगा, आपने कभी सोचा क्या कि जो पुराने पेंटिंग्स थे इनमें से हिरन क्यों दिखाते थे? चलो भिक्षु दिखा रहे समझते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले 5 भिक्षुओं को प्रवचन दिया। कितने पद दिखे? 5 को। लेकिन ये हिरन वहां पे क्यों दिखाए? क्या हिरणों को भी उपदेश दिया भगवान ने? नहीं, दरअसल जहाँ पे दिया वहां पे हिरन बहुत रहते थे। क्या रहते थे? हिरन। हिरन को कहते थे पाली में मृग। क्या कहते हैं? मृग कहते हैं। तो इसलिए जहाँ जिस प्लेस में दिया वहां पे बहुत सारे हिरन रहते थे, इसलिए उस प्लेस को कहते थे मृगदाय वन। ऐसा गार्डन, ऐसा वन जहाँ पे मृग मतलब हिरन बहुत रहते हैं।
तो इसलिए इसको दिखाने के लिए कि भगवान ने पहला प्रवचन कहा दिया, वेयर मृगदाय वन। तो उस बात को दिखाने के लिए ऐसे पुराने पेंटिंग्स में हिरन दिखाते हैं। तो जिस भी किसी पेंटिंग में आपको हिरन दिखा रहे हैं, समझ जाओ ये भगवान के पहले प्रवचन की फोटो है। किस प्रवचन की फोटो है? और कहाँ की फोटो है? मृगदाय वन की। कहाँ की फोटो है? तो वेयर डिड बुद्धा फर्स्ट टॉट? मृगदाय वन। मृगदाय वन, ओके। इसलिए हिरन दिखाते, देखो इसलिए कई सारे सिंबल्स में हिरन भी दिखाते हैं। तो ये बुद्धिस्ट सिंबल एक है कि वहां पे हिरन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं हिरन? क्योंकि बुद्ध ने पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पे किया? मृगदाय वन, मतलब जहाँ पे बहुत सारे हिरन रहते थे। तो इसलिए बुद्धिस्ट सिंबल में हिरन जगह जगह दिखाते। दिख रहा है यहाँ पे बीच में जो सिंबल है वहां पे हिरन है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did Buddha taught this? यानी बुद्ध ने किसको पढ़ाया? ठीक है, तो दिख रहे यहाँ पे 5 छोट मस्त मंक्स है। तो 5 लोगों को पहले, सबसे पहले कि इनको पढ़ाया। बुद्ध ने जगह जगह बहुत सारे भिक्षुओं को पढ़ाया, 1200 1000 1000 1200 5000 इतने सारे लोगों को पढ़ाया अपने समय में। लेकिन सबसे पहले किनको पढ़ाया? 5 शिष्य को। कितने शिष्य को पढ़ाया? तो अभी उनके नाम क्या है? जिनको क्या कहते हैं? पंचवग्गीय भिक्षु। क्या कहते हैं? पंचवग्गीय, 5 तरह के। पंच मतलब 5, वग्गीय मतलब तरह के, पंचवग्गीय भिक्षु। तो क्या क्या नाम है उनके? कौंडन्य। क्या नाम है? कौंडन्य, दूसरे महानाम, महानाम, तीसरे वाप, वप्प, चौथे भद्दीय, और 5वें अश्वजीत। तो इनमें सबसे छोटा कौन था? अश्वजीत। और सबसे बड़ा कौन था? कौंडन्य। सबसे बड़ा कौन है? आपको पता है कौंडन्य उनके पहले गुरु थे बुद्ध के, सिद्धार्थ के, और बाद में क्या बने? शिष्य बने। यानी देखिए भगवान बुद्ध ने कितना बड़ा नॉलेज, कितना अच्छा नॉलेज प्राप्त किया होगा कि जो पहले उनका गुरु था अब उनका क्या बन रहा है? शिष्य बन रहा है, स्टूडेंट बन रहा है। तो यानी कितना सुंदर ज्ञान होगा वो, कितना सुंदर नॉलेज होगा जो बुद्ध ने प्राप्त किया होगा वैशाख पूर्णिमा के दिन, कि उनका खुद का गुरु उनका शिष्य बन रहा है। कौन? कौंडन्य। ओके। और अश्वजीत सबसे कौन था? उन 5 में सबसे छोटा कौन था? ये, ठीक है। और बाद में अश्वजीत आगे चल के सारिपुत्र भंते का गुरु बना। कौन बना? गुरु कौन बना? अश्वजीत। किसका गुरु बना? सारिपुत्र का। सारिपुत्र भगवान बुद्ध का राइट हैंड माना जाते हैं। देखो जो भगवान बुद्ध का राइट हैंड माना जाता है वो आगे जाके वो किसका शिष्य था? अश्वजीत का। अश्वजीत से उसे धर्म सुना था। ओके, चलो फिर से नाम प्रोवाइड बोलेंगे। पहले कौन है? कौंडन्य, फिर महानाम, फिर वप्प, भद्दीय, अश्वजीत, कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय, अश्वजीत। अभी सब लोग फास्ट बोलेंगे, ठीक है? कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय, अश्वजीत। चलिए बोलिए। और एक बार, कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय, अश्वजीत। और एक बार, कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय, अश्वजीत। और एक बार, कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय, अश्वजीत। नाउ लास्ट टाइम, कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय, अश्वजीत। इन्हें क्या कहते हैं? पंचवग्गीय भिक्षु। क्या कहते हैं?
तो आप जब भी ये कहीं नाम सुने पंचवज्ञ भिक्खु, मतलब समझिएगा बुद्ध के पहले 5 शिष्य। कौन? पंचवज्ञ भिक्खु मतलब कौन? बुद्ध के पहले 5 शिष्य। साधु साधु साधु। अब सवाल ये आता है कि वाई बुद्ध ने क्यों पढ़ाया ये आर्य विनय? वाई डिड बुद्ध टॉट दिस आर्य विनय? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वाई, बुद्ध ने क्यों पढ़ाया? तो इसके आंसर ये है, फॉर द लिबरेशन। किसके लिए? For the मतलब अरहंत बनने के लिए। क्या बनने के लिए? अरहंत ही बुद्धिज्म का अल्टीमेट गोल है, एकमात्र अचीवमेंट है। क्या बनना है हम सभी को? हम सभी को क्या बनना है? अरहंत बनना है। क्या बनना है? अरहंत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरेशन, है ना? तो हमें क्या चाहिए? लिबरेशन मतलब मुक्ति, मतलब अरहंत बनना है। क्या बनना है हम सभी को? हम बुद्ध की टीचिंग क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम बुद्ध की शिक्षा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम सभी को किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरहंत बनने के लिए। किसके लिए? और अगर दूसरी भाषा में बोलना है, किस और सरल भाषा में बोलना है, तो आर्य पुरुष। क्या बनना है? मतलब नोबल मैन। क्या बनना है? नोबल। आर्य मतलब श्रेष्ठ, नोबल पर्सन, नोबल मैन। ओके, श्रेष्ठ इंसान, अच्छा इंसान। सबसे अच्छा इंसान मतलब कौन होता है? आर्य पुरुष, श्रेष्ठ इंसान। और अगर दूसरी भाषा में कहना है तो गुड मैन। क्या कहते हैं? गुड मैन। हिंदी में क्या बोलेंगे? सत्पुरुष। क्या बोलेंगे? तो अरहंत, नहीं तो आर्य पुरुष, नहीं तो सत्पुरुष। इन तीनों में से कोई एक बनने के लिए क्या है? बुद्ध ने हमें आर्य विनय पढ़ाया। एक तो अरहंत, आर्य पुरुष, नहीं तो सत्पुरुष। ठीक है, अरहंत सबसे हाईयर, फर्स्ट रैंक। अगर अरहंत बन के नहीं हो रहा तो कोशिश करो आर्य पुरुष बने। अगर आर्य पुरुष बन के नहीं हो रहा है तो कम से कम सत्पुरुष, दैट्स अ गुड मैन। ठीक है, तो बुद्धा की टीचिंग क्यों है? गुड मैन बनने के लिए, गुड ह्यूमन बीइंग, है ना? तो आप सब गुड मैन बनना चाहते हैं ना? गुड मैन और गुड गर्ल और गुड वुमेन, सत्पुरुष। ओके, तो हमें सत्पुरुष बनने के लिए, गुड मैन बनने के लिए इस आर्य विनय को, इस नोबल डिसिप्लिन को, इस अच्छी शिक्षा को फॉलो करना पड़ेगा। ओके ओके, नेक्स्ट। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नोबल मैन? आर्य पुरुष किसे श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं हम लोग? तो सबसे पहले श्रोतापन्न, जो श्रोतापन्न होता है हम लोग उसे क्या कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुष। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? श्रोतापन्न को। किसे कहते हैं? तो स्रोत मतलब फ्लो, जो धर्म के स्रोत में गिर गया, जो श्रोतापन्न हो गया, उसे क्या कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुष। इसके अलावा सकृदागामी, इसे भी क्या कहते हैं हम लोग? आर्य कहते हैं, जो कोई सकृदागामी अवस्था प्राप्त किया होगा। ओके, जिसने सकृदागामी अचीव किया होगा। इसके अलावा अनागामी, बोलिए। अनागामी। को भी आर्य पुरुष, नोबल मैन माना जाता है, जो अनागामी बन गया, है ना? और एक होता है अरहंत। तो ये 4 तरह के इंसान लोग हम लोग क्या कहते हैं? आर्य पुरुष। ठीक है, बोलिए मेरे साथ। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत। तो ऐसे इन चारों में से जब भी कोई अगर एक अवस्था हम प्राप्त करते हैं तो हम आर्य माने जाते हैं। ठीक है, आर्य पुरुष। नेक्स्ट, फिर क्या होता है? एक सत्पुरुष भी होता है। सत्पुरुष किसे कहते हैं? जो 7 तरह की बातों से क्या होता है? परिपूर्ण होता है, उसे कहते हैं हम लोग सत्पुरुष। तो कौन सी? अ पर्सन हु हैव कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है?
A person. कॉन्फिडेंस क्या, आर्गुमेंट करने के लिए क्या, या बुरी बातें करने के लिए क्या, नहीं, अच्छी बातें करने के लिए, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है। जो कॉन्फिडेंट होता है वो क्या होता है, ये एक अच्छे इंसान का एक पहला गुण होता है। दूसरा क्या होता है, मॉरल शेम। क्या होता है, Moral. मॉरल शेम मतलब गलत काम करने के लिए उसे डर लगता है, वो उसे शर्म आती है क्या करने के लिए, गलत काम करने के लिए, है ना। गलत काम कौन से हैं, झूठ बोलना, हिंसा करना, किसी को मारना, गलत शब्द बोलना, गाली देना, है ना, चोरी करना, ये सारे क्या है, गलत काम है। तो इन गलत काम करने के लिए उसे क्या आती है, शर्म आती है। ओके, तो उसमें जो सत्पुरुष होता है उसमें क्या होता है, मॉरल शेम। दूसरा मॉरल फियर, क्या होता है, मतलब डर, उसे गलत काम करने के लिए क्या लगता है, डर लगता है कि नहीं, अगर मैंने गलत काम किया, किसी को पता चल गया तो मेरे बारे में वो गलत सोचेगा, या मेरे मम्मी को, मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे डांटेंगे, मुझे गलत मानेंगे। तो इस प्रकार डरता है वो गलत काम करने के लिए। कौन डरता है, सत्पुरुष, गुड मैन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी मच लर्न, मतलब उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नई नई बातें जानना क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी कोई गुड मैन होगा, सत्पुरुष होगा, वो हमेशा नई नई बातें सीखने की इच्छा करेगा। तो आप लोग को सीखने की इच्छा होती है कि नई नई बातें, हाँ, Yes, sir. यस, तो इट मीन्स यू आर अ गुड मैन। तो एक अच्छा इंसान हमेशा नई नई बातें सीखने का इच्छा रखता है। जैसे कि वे सिद्धार्थ गौतम का, भगवान बुद्ध के लड़के राहुल, राहुल को भी नई नई बातें सीखने की बहुत इच्छा होती थी। वो हमेशा हमेशा से रात को सोते समय ऐसा सोचते थे कि आज मैंने क्या क्या नई बातें सीखा, और उन बातों को याद करते थे, है ना। सो और सेकंड, टू बी स्टार्ड अप एनर्जी, हमेशा वो एनर्जेटिक होते हैं कि चलो अभी क्या करना है, चलो अभी कुछ नया काम करते हैं, चलो कुछ नया सीखते हैं। हमेशा उनमें ऐसी एनर्जी होती है जो गुड मैन होते हैं, हमेशा सीखने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। और सबसे आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हैव एबल एस्टैब्लिश माइंडफुलनेस, हमेशा जागरूक होते हैं, हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड होते हैं। तो ये 7 बातें किसमें होती है, अ गुड मैन, सत्पुरुष में। तो आप में भी ये बातें हैं क्या, नहीं, तो हम डेवलप करेंगे। ओके, क्या क्या डेवलप करेंगे, सबसे पहले कॉन्फिडेंस, डरेंगे क्या, Yes. नहीं, अच्छी बातें करने के लिए हमें क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंस हम लोग डेवलप करेंगे। दूसरी बात हम क्या करेंगे, हम हम लज्जा उत्पन्न करेंगे अपने अंदर, थोड़ी शर्म गलत काम करने के लिए, और डरेंगे गलत काम से। ओके, और हमेशा तैयार रहेंगे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, और हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेंगे। तो ये 7 बातें डेवलप करने की कोशिश करो। ओके, जिस प्रकार दिख रहे हैं ना यहाँ पे ऊपर में छोटे छोटे मंक, है ना, हमेशा अच्छा रहो। एक मंक है ना, एक ऐसा करके, इसका मतलब क्या है, हमेशा अच्छे बने रहो और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। एक ने कान में ऊँग डाल के रखा है, मतलब बुरा ना सुनो। एक ने बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो। ये किस, आपने सुना, इनको देखा है कभी, बहुत लोगों को लगता है ये गांधी जी ने दिया, पर यह सबसे पहले किसने दिया इंडिया में, बुद्ध ने। फिर उसके बाद इन सब लोगों ने फॉलो किया, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और बुद्ध ने एक और दिया कि सभी के साथ अच्छा रहो और अच्छी अच्छी बातें सीखो। ओके, तो आप सभी लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए। Yes, sir. ओके, सो क्या अभी हम सवाल पूछे, Yes, sir. ओके, तो अभी हम एक एक करके सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, व्हाट डिड बुद्धा टॉट, हेल्प में बताइए, हाथ ऊपर करेंगे जो जवाब देंगे, जिसको जवाब देना होगा। गिव मी आंसर, व्हाट डिड बुद्धा टॉट, बुद्ध ने क्या पढ़ाया, धम्म, धम्मा। और सटीक भाषा में क्या बोलेंगे हम उसे, ज्ञान। मैंने वर्ड बताया, बताइए वर्ड, धर्म। परिवर्तन चक्र। ना, आर्य विनय क्या पढ़ाया, या फिर धम्म विनय, बुद्ध ने क्या पढ़ाया, आर्य विनय या धम्म। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने कैसे पढ़ाया, हाउ डिड बुद्धा टॉट, 5 शिष्यों को पढ़ाया।
नहीं, वो तो किसे हो जाएगा, हुम हो जाएगा। हाउ, हाउ मतलब दो तरीके से पढ़ाया। किस तरीके से पढ़ाया? दो तरीके से। एक दुख बता के और दूसरा दुख का विरोध बता के, मतलब दुख नष्ट होता है ये बता के पढ़ाया बुद्ध ने। कैसे पढ़ाया? दुख बता के और दुख कैसे नष्ट होता है ये बता के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वाई, बुद्ध ने क्यों पढ़ाया? क्योंकि वो बच्चों को अपने जैसे बनाना चाहते थे। साधु साधु, क्योंकि वो हमें गुड मैन नहीं तो नोबल मैन बनाना चाहते थे। साधु, इसका मतलब क्या होता है? एक तो अरहंत, नहीं तो आर्य पुरुष, नहीं तो सत्पुरुष, यह बनाना चाहते थे, इसलिए पढ़ाया। ठीक है, फिर हुम किसे पढ़ाया? साधु पंचवज्ञ, क्या नाम थे उनके? गुड गुड गुड। कौंडिन्य, बोलिए मेरे पीछे, कौंडिन्य, भद्य, अश्वत्थ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अरे वाह, आप सभी लोग तो काफी शार्प माइंडेड है। अब नेक्स्ट, वेयर, भगवान ने वेयर डिड टॉट, भगवान कहाँ पढ़ाया भगवान ने? यहाँ पे बहुत सारे क्या थे? हिरन थे। कहाँ पे पढ़ा भगवान ने? मृगदाय। यहाँ पे मृग मतलब हिरन होता है ना, इसलिए मृगदायवन। जहाँ बहुत सारे हिरन थे, मृगदायवन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन डिड, बुद्ध ने कब पढ़ाया बताइए? ज्ञान प्राप्ति के 2 वैशाख पूर्णिमा के 2 महीने बाद। कब पढ़ाया? 563 BC। मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन। किस दिन पढ़ाया? साधु साधु साधु। तो आज हमने ये 5 तरह की बातें जानने की कोशिश की। ठीक है, मैं ये स्लाइड्स ग्रुप में भेज दूंगा, आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप सभी को समझा जो आज हमने पढ़ा? किसी को कोई सवाल है? हाँ, I have a question. ओके, यू मे आस्क आस्क। बनते गौतम बुद्ध का सरनेम क्या था? गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो देखो, जब तक बुद्ध नहीं बने तब तक उनका सरनेम था, पर एक बार जब कोई बुद्ध बन जाता है तब उनका सरनेम नहीं रहता, क्योंकि वो किसी कास्ट, किसी जाति से तब या किसी एक धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते। तो जब बुद्ध बनने के थे तब उनका सरनेम था सिद्धार्थ गौतम। क्या था उनका सरनेम? गौतम। क्या था? उस समय गोत्र के हिसाब से सरनेम थे, या फिर शाक्य कुल से थे। किस कुल से थे? शाक्य। शाक्य मतलब सबसे शक्तिशाली। ओके ओके। पर एक बार जब उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध बन गए, तब उसके बाद से उन्हें सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्ध। तब उनका नाम कोई सरनेम। ओके, हाँ जी, कौन? विभोर बोल रहा हूँ मैं, मुझे क्वेश्चन है। हाँ विभोर जी, बोलिए बोलिए। गौतम बुद्ध ने जो भी पढ़ा है वो पाली भाषा में पढ़ा है ना? हाँ, भूमि। तो संस्कृत पहले बनी है या पाली? भूमि। संस्कृत बनी है पहले या पाली बनी है पहले? देखो बच्चों, जो संस्कृत है वो एक पर्टिकुलर, एक ऐसा समूह की लैंग्वेज थी। वो हर एक को बोलना अलाउड नहीं था, हर एक को सुनना अलाउड नहीं था। पाली जो है वो नेचुरल लोगों की, नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज थी। तो कैसा हो सकता है कि मैं इस सब में नहीं गिरूंगा कि पहले संस्कृत बने या पाली बने। मेरा इस बात पे है कि किसका नॉलेज हमारे लिए सबसे अच्छा है ना? कौन सा नॉलेज जो सब लोगों तक वो सबसे आसानी से पहुंचा, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो पाली लैंग्वेज के कारण सभी तक नॉलेज सबसे आसानी से पहुंचा, सभी लोगों तक। तो मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंस पाली का हो जाता है इस बात के कारण।
क्योंकि जिस चीज से सबसे ज्यादा लोगों का भला होता है उसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में कोई बर्तन होगा, अगर उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता होगा तो वो बर्तन अपने आप घर में सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए हमने इम्पोर्टेंस पे ध्यान देना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से पाली हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी कौन सी लैंग्वेज पहले आई ये तो एक स्कॉलरली सवाल है, उस पर हम ना गिरे तो अच्छा है, का विवादपूर्ण है। ठीक है, कुछ लोग बोलते पाली आई, कुछ लोग बोलते संस्कृत आई, पर मैं उन सब में नहीं गिरता उन बातों में। ठीक है, भंते बुद्ध जी, बोलते हैं वंदामी हमने, भंते जी। हाँ वेट वेट वेट, बुद्ध बोलते हैं कि हमने उन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे डिबेट हो, जिससे वाद विवाद हो, है ना, या जिस ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए जिसके बारे में एक व्यक्ति हाँ कहता है दूसरा व्यक्ति ना कहता है। भगवान कहते हैं ऐसे टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, उसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए जिसपे सभी लोग एग्री हो, तो उससे यहाँ झगड़े नहीं होंगे। जिससे सभी लोग एग्री हो उसी बात पे डिस्कस कीजिए तो झगड़े नहीं होंगे। हाँ, अगर ऐसे टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे जिसपे एक इंसान हाँ बोल रहा है एक ना बोल रहा है तो पूरी पूरी गारंटी है कि झगड़े हो सकते हैं। ओके, वंदा भी भंते जी, मंगल हो, मंगल हो। बुद्ध बुद्ध क्यों बने? बुद्ध क्यों बने? उनको मतलब इतनी उत्साह क्यों हुई बुद्ध बनने की? बुद्ध इसलिए बुद्ध बने क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों के लाइफ में दुख है और लोग अपने दुख से परेशान थे, वो चाहते थे कि वो अपने दुखों से दूर हो, पर लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। इसलिए बुद्ध ने क्या किया कि वो रास्ता खोजने की इच्छा हुई उनमें कि वो रास्ता क्या है, कैसे दुख दूर होगा। तो ये खोजने की इच्छा उनमें उत्पन्न हुई, लोगों के दुख दूर करने की इच्छा हुई, उनमें करुणा उत्पन्न हुई, इस कारण से वो बुद्ध हुए। तो बुद्ध उसे कहते हैं जो दुख और दुख मुक्ति का मार्ग खोजता है, जिसने ये खोजा उसे बुद्ध कहते हैं। उन्होंने खोज लिया इसलिए उनको फिर लोगों ने बुद्ध कहना शुरू किया। ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चों, अभी बज चुके हैं मेरे यहाँ पे 10 बजे, आपके यहाँ पे पता नहीं कितने बजे, आपके यहाँ बजे होंगे 8:30, है ना? मेरे यहाँ पे मंगल हो। तो अभी हम लोग बाय बाय करें। किसी को कोई सवाल है? रुको बाय होने से पहले सभी लोग अपने कैमरा ऑन करेंगे, हम लोग फोटो ले लेंगे। ठीक है बनते जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ मंगल, नहीं हो पा रहा। तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करो। सबसे पहले हम इन बच्चों का फोटो लेंगे। वही बच्चे कैमरे के आगे आ जाओ। वैशाली बोरकर जी, सही बच्चों कैमरे के आगे ला लो, अरेंज कर लो। सालवे जी फोटो लीजिए एक। ठीक है, चलो सभी लोग हाथ जोड़ लो। वंदामी भंते। मंगल हो, सभी लोग आ जाओ कैमरे के आगे। हाँ सालवे जी लीजिए, क्या ले लिए फोटो? हाँ वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, फोटो ले लीजिए। ओके, अभी सब लोग ऐसा कीजिए, चलिए ऐसा कीजिए, ये हो या गुड गुड गुड। और अभी ऐसा कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? लव, है ना? आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 सारे हार्ट्स। ओके, लव। ओके, अभी जो बाकी बच्चे हैं वो लोग सभी लोग अभी अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, ओह माय गॉड इतने सारे बच्चे, ओहो हो। अभी उसके लिए बाय बाय बोलने के पहले हम क्या करेंगे? क्षमा याचना क्यों करेंगे? क्योंकि शायद अगर हमसे कोई गलती वगैरह हुई होंगी तो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे, क्योंकि एक अच्छे सत्पुरुष का एक अच्छा गुण होता है कि वो माफी मांगता है। वो माफी मांगने के लिए कभी भी आगे पीछे नहीं सोचता है। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़े, घुटनों के बल बैठ जाए और चलिए, जमता है तो ही बैठो, क्योंकि ओके चलो बोलिए मेरे पीछे बोलने का। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत
कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खमामि धम्म संधिठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खमामि संघ हुयं खेतं अनुसर अभी 3 बार साधु बोलना है, ठीक है? साधु साधु सभी बच्चे अभी हम लोग पुण्यानुमोदन करेंगे, ओके? ठीक है, तो सभी बच्चे एक गिलास में पानी ले लीजिए और एक कटोरा ले लीजिए। चलिए, एक गिलास में पानी और एक कटोरा या कटोरी या पतीला या घमेला। ले लिया सबने? पकड़ो दोनों। अभी इसे हम लोग क्या कहते हैं? पतिदान। क्या कहते हैं? पतिदान। मतलब अभी हमने प्रवचन सुना, भंते से बात किया, उनको हाथ जोड़ा, उनको वंदन किया, त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया, तो हमने इससे पुण्य जमा किया। क्या किया? अभी ये पुण्य हम सभी में बांटेंगे, ठीक है? तो जिस प्रकार पानी जाके सागर में मिल जाता है, उसी तरह हमारा पुण्य इन सभी के पुण्य में जाके मिल जाए। तो ये इसका एक सिंबल है पानी छोड़ने का। जिस तरह पानी सागर में जाके मिलता है, हमारा पुण्य भी सभी में जाके मिल जाए और सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग हैप्पी रहे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? कामना करेंगे पानी छोड़ते हुए कि सभी लोग हैप्पी हो, कोई ज्यादा दुखी ना रहे, है ना? जिस तरीके से पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना? आपको पता है ना, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे जितनी भी नदियां हैं वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो खुद ब खुद बने हैं। तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। उसी प्रकार इसलिए हम पानी छोड़ते हैं कि पानी जिस तरह अपना रास्ता खुद बनाता है, हमारा भी पुण्य अपना रास्ता खुद बनाते हुए सभी का जीवन सुखी बनाए। ऐसा हम क्या करते हैं? पानी छोड़ते हुए मंगल कामना करेंगे। तो पानी छोड़ते सभी लोग मन में विचार करेंगे कि मैंने जो पुण्य कमाया वो पुण्य सभी को मिले और सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, ठीक है? तो चलिए, पानी छोड़ते वक्त सब लोग बोलेंगे। चलिए शुरू कीजिए। इदं मे पुयं, इदं मे पुयं ज्ञातिनं हुन्तु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं मे पुयं ज्ञातिनं हुन्तु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। यह पुण्य विश्व के सभी लिविंग बींग्स के सुख के लिए है। मेरे पुण्य से सभी लिविंग बींग्स सुखी रहे। मैं अपना पुण्य सभी लिविंग बींग्स में
बांटता हूँ या बांटती हूँ। इच्छितां पचितां तुम्मां खिप्पमेव समिजतु सब्बे पुरेन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नो रसो यथा मनि ज्योति रसो यथा। डालते रहे मनी ज्योति रसो, पानी डालते रहने का। अभी पानी छोड़ दो, ठीक है। अभी हाथ जोड़ के बैठ जाओ। मनी ज्योति रसो तक पूरा पानी डालते रहने का। अभी हाथ जोड़ के बैठ जाओ, ठीक है। अभिवादनशीलस्सा नित्यं वड्डापचायिनो चत्वारो वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। आप सभी सुखी रहे। जिस तरीके से पूर्णिमा का चंद्र पूरा एक न एक दिन पूरा होता है, उस तरह आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूनम के चांद की तरह पूरी हो। बोलिए साधु साधु कितने बार बोलते हैं हम? 3 बार। कितने बार बोलते हैं? क्या अर्थ होता है इसका? जब पहली बार हम साधु बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि भंते आपने जो भी कुछ बोला हमें वो अच्छा लगा। पहली बार साधु मतलब इसका अर्थ क्या होता है? भंते आपने जो भी कुछ बोला हमें वो अच्छा लगा। साधु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। तो पहली बार साधु बोले इसका मतलब होता है कि भंते हमने जो भी कुछ आपने जो भी कुछ बोला हमें वो अच्छा लगा, ठीक है। ओके। दूसरी बार अगर आपने साधु बोला तो इसका मतलब भंते आपने जो भी कुछ बोला उसके साथ हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरी बार साधु बोलने का अर्थ ये होता है। और तीसरी बार अगर आपने साधु बोला तो इसका मतलब ये होता है कि भंते आपने जो भी कुछ बोला वो हम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो पहली बार साधु बोला इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ बोला वो हमें अच्छा लगा। दूसरी बार साधु बोला इसका मतलब बनते आपने जो भी कुछ बोला हम उसको फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और तीसरी बार साधु बोला इसका मतलब बनते आपने जो भी कुछ बोला हम वो दूसरों तक भी पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो ये होता है 3 बार साधु बोलने का अर्थ। तो समझा आपने 3 बार साधु क्यों बोला? तो साधु साधु साधु। ओके बाय 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 विनोद, बाय बाय अपूर्वा, विभोर, रानी वगैरह सभी सभी। बंदा मंगल हो बेटा, मंगल हो मंगल। बाय, टेक केयर। मंगल हो मंगल हो। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप सभी लोग और सालवी जी को हाय बोल देंगे, ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है। सभी को नमो बुद्धाय। आज के धम्म देशना सत्र में जुड़ने के लिए बहुत साधुकार। सभी को धम्म रात्रि। साधु साधु। ठीक है बुद्धि जी, आपको भी बहुत बहुत साधुकार। और बहुत अच्छा लगा ना, कितने प्यारे बच्चे एक साथ। नहीं ना, कितने प्यारे प्यारे। सोचा नहीं। वैशाली दाई को भी बहुत बहुत साधुकार। धन्यवाद दादा, धन्यवाद धन्यवाद। थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच। वीडियो चालू करा। बरं। सभी बच्चे गए। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वैशाली जी, और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे, बहुत है। ठीक है, हम कभी देखेंगे तो आप सभी लोग अलग अलग जगह से है ना? कितने लोग नागपुर से हैं? मुझे हाथ ऊपर करें। ओके 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 ओके। मेरे 14 बच्चे थे बनते जी, 14 बच्चे थे, पर थोड़ा लेट हो गया इस वजह से कोई चले गए। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि बिहार में ही लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बड़ी स्क्रीन पे हो, लैपटॉप पे हो, या बड़ी कोई स्क्रीन अगर एलईडी टीवी होंगी। हाँ, प्रोजेक्टर ले लूंगी मैं, प्रोजेक्टर पे करूँगी। थैंक यू बंटी जी, आपको बहुत शॉर्ट स्पैन में आपने बहुत अच्छा किया। और ये तो जो नागपुर में है उनके लिए हम कुछ देखेंगे, तो कुछ अरेंज करेंगे कोई प्रोग्राम वगैरह, ठीक है। हाँ ठीक है। या कुछ ऐसा वैशाली जी के थ्रू एक जगह पे गेट टुगेदर करके, ठीक है। ठीक है ठीक है। भंते जी, मंगल हो मंगल हो। भंते जी, मी अकोल्याहून बोलत आहे। हो बोला। मला पण